Dear friends, according to Psalm 40:17, may the Lord think about you and bless you. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर भजन संहिता 40:17 के अनुसार आपके बारे में विचार करे और आपको आशीष दे। Here David says, I am poor and needy. May the Lord think of me. यहाँ दाऊद कहता है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। Dear friends, we many times say we are so needy and poor. मेरे मित्रों, हम कई बार कहते हैं कि हम बहुत दरिद्र हैं और जरूरतमंद हैं। Poor and needy means we are in need of God and we are in need of God's blessings. दीन और दरिद्र होने का मतलब है कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है और उसकी आशीषों की जरूरत है। In Psalm 46:1, David said, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. भजन संहिता 40:1 में दाऊद कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। And he again says, therefore we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea. इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। Though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। God is in the midst of her, she shall not be moved. God will help her when morning dawns. परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। Many things may happen around us, but then God is in the midst of us. बहुत सारी बातें हमारे जीवन में चलती हैं, लेकिन एक सत्य है कि परमेश्वर उन सभी बातों के बीच में है। David also says, I have kept the Lord always before me, because he is at my right hand, I will not be moved. दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। Yes, dear friends, we may say we are poor and needy. हाँ मेरे मित्रों, हम कह सकते हैं कि हम दीन हैं, दरिद्र हैं। But then the Lord is in the midst of us thinking about us. लेकिन परमेश्वर हमारे इन सोचों के मध्य में है। There may be storms or troubles all around us. हमारे मध्य में तूफान और समस्याएं हो सकती The है। whole world may forget about us. हो सकता है पूरी दुनिया हमें भूल जाए। But the Lord is thinking about His people. लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के विषय में चिंता करता है। That too, He thinks about His humble ones. वह अपने दीन नम्र लोगों के विषय में चिंता करता है। When things go wrong on our side, even at that time we may humble before God and cry out for Him, for His presence to be with us. और यहाँ तक कि जब चीजें गलत भी हो जाए, हम उसके सन्मुख दीन होकर आकर पुकार सकते हैं उसके सहायता के The लिए। Lord thinks those humble ones. परमेश्वर उनकी चिंता करता है जो दीन है। Look at the life of Job. अय्यूब के जीवन के ओर देखें। When he was so rich, the world thought about him and respected him. जब वो धनी पुरुष था, तब सारे लोग उसकी चिंता करते थे और उसकी ओर देखा करते थे। But then when he lost everything in his life, even his close friends, they blamed him. और जब उसने सारी बातों को खो दिया, यहाँ तक कि उसके घनिष्ठ मित्र भी उस पर इल्जाम लगाने लगे। But then Job was not perturbed at all. लेकिन अय्यूब उन बातों से व्याकुल नहीं हुआ। Because he had the confidence that God was with him in the midst of his trouble. क्योंकि अय्यूब को यह मालूम था कि परमेश्वर इन सभी समस्याओं के मध्य में उसके साथ है। And he said in Job 7:17. और अय्यूब 7:17 में वह कहता है, What is man that you should magnify him and think him important and that you are concerned about him? मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए।
And in verse 18, he says that you examine him every morning and try and test him every moment. और वचन 18 में वह कहता है, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। See how the Lord thinks about us. देखिए परमेश्वर किस प्रकार हमारी चिंता करता है। He thinks about us every morning and every moment. वो हर घड़ी और हर सुबह हमारी चिंता करता है। As Job was so confident about this, that the Lord is thinking about him every moment, the Lord blessed him in double measure. और अय्यूब के इस विश्वास के कारण कि हर घड़ी परमेश्वर उसकी चिंता करता है, परमेश्वर ने उसे 2 गुने भाग आशीष का He दिया। got back everything that he lost in double measure. जो कुछ भी उसने खोया उसे 2 गुने भाग में परमेश्वर ने उसे लौटाया। You may say, is the Lord thinking about me? आप कह सकते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे विषय में चिंता कर रहा है? You may even be watching this program from a faraway place. हो सकता है आप इस कार्यक्रम को बहुत दूर से देख रहे हैं, But then God is thinking about you, dear friend. लेकिन परमेश्वर आपके विषय में चिंता कर रहा है प्रिय मित्र। Wherever you are, जहां कहीं भी आप हैं, God knows. परमेश्वर जानता है। Whatever you're going through, God knows. जो कुछ भी आप सह रहे हैं परमेश्वर जानता है। Jacob also said in Genesis 32:10, उत्पत्ति 32:10 में भी याकूब ने कहा, he said to the Lord, I am unworthy of all the kindness and faithfulness the Lord has shown to his servant. तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के लिए किए हैं, ऐसे कामों से मैं एक के भी योग्य नहीं I had हूँ। only my staff when I crossed this Jordan River. जब मैंने यरदन नदी को पार किया मेरे पास सिर्फ ये छड़ी ही थी, But now I have become 2 camps. लेकिन अब मेरे पास 2 खेमे हैं। Yes, the Lord is thinking about you to bless you in double measure. हाँ मित्रों, परमेश्वर आपके बारे में चिंता करता है ताकि आपको 2 गुना आशीष दे। Today you may have nothing in your hand. हो सकता है आज आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, The Lord is thinking about you to bless you in double measure. लेकिन परमेश्वर आज आपके विषय में चिंता करता है कि आपके जीवन में 2 गुने आशीष को उंडेले। His thoughts are higher than our thoughts. उसकी सोच हमारी सोच से ऊपर है। Yes, dear friends, today expect double portion of God's blessing in your life. हाँ मित्रों, आज अपने जीवन में आशा रखें परमेश्वर के 2 गुने आशीष के लिए। Father, let your hand come upon them to bless them in double measure. पिता, आपका हाथ उनके जीवन पर उतर आए ताकि 2 गुने आशीष से आप उन्हें आशीषित करें। For all the shame they have gone through in their life, let them have double portion of honor. पिता, जिस भी शर्मिंदगी से वो होकर गुजरे हैं उसके बदले में उन्हें 2 गुने भाग का आदर मिलने Double पाए। portion of praise. 2 गुना आदर, Double portion of blessing, Lord. आशीष का 2 गुना भाग परमेश्वर। As the Bible says, those who look upon the Lord will not be ashamed. जैसा बाइबल कहती है कि जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। Father, today change all their shame into blessing, oh God. पिता, आज उनकी हर एक शर्मिंदगी को आशीष में बदल दीजिए। Their curses into blessings, oh God. उनके श्राप आशीष में बदल जाए परमेश्वर। Let everything come upon them in double measure. आज सब कुछ उनके जीवन में 2 गुने भाग में उतर आए। Surely there is a reward for the righteous. हाँ, धर्मी के लिए निश्चय प्रतिफल है। Lord, think about these righteous people and bless them and reward them, oh God. पिता, इनके विषय में सोचें, इनके विषय में चिंता करें, इन्हें आशीषित करें और इन्हें प्रतिफल दे परमेश्वर। Lord, let others look at their blessings and turn towards you. पिता, इनकी आशीषों को देखकर दूसरे लोग तेरी ओर फिरने पाए। Thank you, Lord, for your hand is coming upon them heavily right now. धन्यवाद परमेश्वर कि आपका सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर में जोरों से आ रहा है। Let your children have open heaven. पिता, आपके बच्चों के लिए स्वर्ग खुल जाए।
Thank you, Lord, for blessing them. Thank you, Lord, for pouring out your blessings upon your children. धन्यवाद यीशु ने आशीषित करने के लिए, धन्यवाद अपनी आशीषों को उंडेलने के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, dear friends. प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको आशीषित करे। Remember that God is always thinking about you. याद रखें कि परमेश्वर हर वक्त आपकी चिंता कर रहा है।